Today we are going to discuss a interesting topic called as video sensing. Video sensing. Video sensing. Actually, this video sensing is a extension. Extension. What is mean by extension? Is not readily available in Scratch. We have to import from something else, that is from somewhere outside world. Okay, or we can say from external source. Okay, so video sensing is an extension which allow you to use webcam. So video sensing extension is used to allow you video cam. So what is the use of this use of webcam? It will allow you to interact with sprite using your body motion or hand. Okay, let me explain again. So video sensing is an extension which is imported from external source. So use of this video sensing extension is that it will allow you to use that webcam. It is used to turn on the webcam. It is also allow you to interact with sprite using your body motion and hand. Means what? इसमें क्या होता है वीडियो सेंसिंग एक्सटेंशन जैसे हम ऑन करते हैं या यूज करते हैं ये वेबकैम को ऑन कर देता है पहली बार। ओके, नेक्स्ट में ये क्या करता है कि आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है उस बॉडी का मूवमेंट का इंटरेक्शन करता है स्प्राइट के साथ। यानी कि अगर हम हमारे बॉडी मोशन से हमारे कैट से कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने हैंड मूवमेंट किया और उसे बोला कि मूव 100 स्टेप यूजिंग माय हैंड मूवमेंट, तो डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मुझे डायरेक्टली करना है तो मैं पेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक यूज करूंगा, उसके बाद में मूव 100 स्टेप वाला ब्लॉक यूज करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मेरे हैंड का मोशन या बॉडी का मोशन या बॉडी का मूवमेंट यूज करके मैं स्प्राइट को 100 स्टेप आगे भेज सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे हाथ का मोशन, मेरे बॉडी का मोशन का इंटरेक्शन किससे हो गया? स्प्राइट से। तो इट इज अ इंटरेक्शन विथ स्प्राइट यूजिंग योर बॉडी मोशन और योर hand movement. Got it? Okay. Let us see video extension practically using Scratch application. So topic name is video sensing video. Okay. How to add this video sensing extension? Now the first one is how to add this video sensing extension. So the first thing you have to go through this block. Okay, you have to click on this area first, this icon first. Okay, next, when I click on this icon, it will show different types of extension. This is one of the type of extension. Pen is one of the type of the extension. Video sensing is also extension. Text to speech also extension. Translate is also extension. These are the different types of extension we have. So I want this time video sensing extension. Whenever I click on that video sensing extension, see my video will automatically on here. You can see here my video is on.
So these are the different types of the block related to the geosensing extension. These are the four block we have to learn. Very simple blocks are there. So what is the use of this all blocks? Let me explain one by one. We also see some example from your textbook. So let us start from one by one from each block. Okay, the first block I want to show you that one. What is the use of this block? This is the block video motion on sprite. What is the use of this block? This block is used to store the value of your motion. This block is used to store the value of your motion. Now click on this drop down option. It will also store the value of your direction, in which direction you are moving. Okay, if I move from left to right, that is the positive value. Okay, if I move from down to upward, that is the positive value. Upward to down, that is the negative value. Right to left, that is a negative value. Okay, this value are these are the different value which is captured or stored by this block. Okay, let me show you by using say block. And I am putting here complete block inside for your the for your block. So now see our block. When I run this block for your block, see it will give some value to you. Will give some value to you. Let me show you by zooming it. See, it's showing some value. It will detect my motion. Left to right positive, right to left negative values are there. Down to upward also it's showing my motion value, upward to down also showing some negative values. Okay, so it will give my motion value. Okay, how many pixel I cross across that sprite, it will give the value of that pixel. Got it? Okay, so this block is used to store the motion and the direction of your movement. Okay, this is my motion value. See, it will give some motion value. Numbers are blinking there. If I fast move, it will show in fast. So this is the value of my motion. So remember that this block is very important because it will capture your value of your motion and value of your direction also. Okay. It will also capture the motion on your stage area and direction on the stage area. See, this is the motion on the stage area now. See, when I give some motion, it will give the motion value on the stage area. This is stage area, not sprite. And it will give less value on the sprite now. See, zero value is there. Very small value is there. Okay. अब ये अगर मुझे स्टेज एरिया के पे डायरेक्शन भी देखना है तो भी देखिए दिस इज स्टेज एरिया एंड दिस इज माय स्प्राइट. तो स्टेज एरिया पे जो भी डायरेक्शन मूव हो रहा है मेरे हैंड का उसकी वैल्यू भी ये स्टोर करता है. गॉट इट? So very important block. Now next block is when this is also very important block. When video motion on, this block is used to turn on your script. This is the first statement. ये आपकी स्क्रिप्ट को ऑन करता है. सी, अगर आपने देखा कि इवेंट ब्लॉक में हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे, तो इसका सिंबल और इस ब्लॉक का सिंबल सेम है, या ब्लॉक का जो भी डिजाइन है सेम है, नॉट सिंबल, डिजाइन इज सेम. तो ये वाला स्क्रिप्ट को ऑन करता है तो ये भी स्क्रिप्ट को ऑन करेगा. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है.
जैसे कि यहाँ पे हम हमारे मोशन का सेंसिटिविटी डिसाइड कर सकते हैं। सेंसिटिविटी डिसाइड करेंगे यानी क्या, कि यहाँ पे हम वैल्यू देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू देता हूँ, तो 1 वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू है, लेकिन ये मोर सेंसिटिव है। यानी कि मैं थोड़ा भी मूवमेंट अगर हाथ का करूंगा, या मेरे आई मूवमेंट या मेरे लिप मूवमेंट पे मेरा कैट कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी। नाउ सी, 10 स्टेप मूव करता हूँ, देखिए थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट हो रहा है तो कैट का एक्शन परफॉर्म करना चालू हो गया। देखिए, तो छोटे छोटे बॉडी मूवमेंट या कलर चेंजेस से भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो ना बैकग्राउंड कलर चेंजेस भी वो ले रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर 50 कर दूँ तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये सेंसिटिविटी आपकी कम हो गई, यानी कि मीडियम लेवल पे आ गई। अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मोशन करना पड़ेगा, तभी मेरा स्प्राइट मूव होगा। थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ेगा मुझे। लेट मी सेट एट 40। अब सेंसिटिविटी कम हो गई, तो ये मूव कर रहा है फॉर इसे फॉर ब्लॉक में। देखिए, देखिए मेरे बॉडी के मूवमेंट से ये मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ तो ये और सेंसिटिव हो जाएगा। देखिए, अब छोटे छोटे मूवमेंट पे ये परफॉर्म कर रहा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा भी मूवमेंट हुआ तो ये परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये मूव हो रहा है। अब मैं इसे 100 पे डाल देता हूँ। अब देखिए, मैंने सेंसिटिव को वैल्यू को वेरी हाई कर दिया, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत कम हो गई। अब कितना भी मूवमेंट करो, बॉडी का मूवमेंट करो, कुछ भी करो, ये मूव नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेंसिटिविटी की वैल्यू हाई कर दी और सेंसिटिविटी कम कर दी। वैल्यू हाई करना यानी सेंसिटिविटी कम कर देना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी 20 करता हूँ तो ये मोर सेंसिटिव हो जाएगा। थोड़े थोड़े मोमेंट पे भी ये वर्क करना। ठीक है, तो कम वैल्यू देने से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ओके, और ज़्यादा वैल्यू देने से वो कम सेंसिटिव होता है। अपोजिट फिनोमेना इज देयर। ओके, so this block is used to run the script. This block is used to run the script, also used to give some sensitive value here. Okay, two options are there. We can put some value also there, that is the sensitivity of your body movement, or and we can also run the script by using this block. So two things are possible by using this block. One is to run the script, and second one is to give the some sensitivity value. Okay, understood? तो ये सब मेरे बॉडी मूवमेंट पे हो रहा है। अब मैं, देखिए आपको, अगर मैं 20 रखता हूँ तो छोटे छोटे बॉडी मूवमेंट पे भी वो, देखिए थोड़ा ही हाथ हिला रहा हूँ मैं तो वो मूव हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर 200 कर देता हूँ तो कितना भी हाथ हिलाओ, वो मूव नहीं करेगा, कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, now third block is turn video on off. Very simple. It is used to turn on or off the webcam. See, I run this block by using this off value, it will automatically off. When I turn it on and run again by clicking on this block, it will run my webcam or on my webcam or start my webcam. Okay, I click on off button, it will turn off my webcam. So very simple functionalities of this block. Now next block is very important. This is definitely asked in your final exam. Very important. Very important. So in exam, many times this block will ask, and also, and in exam they will only ask the description of this. Okay, so what is the description, or the what is the exact
definition of this block. What is the use of this block? Set video transparency to 50। तो देखिए इसका यूज क्या है। वीडियो की ट्रांसपेरेंसी मींस विजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए सेट वीडियो ट्रांसपेरेंसी ब्लॉक यूज होता है। सेट वीडियो ट्रांसपेरेंसी ब्लॉक यूज टू सेट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वीडियो रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100। हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो आपका वीडियो लेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि मोर विजिबल होगा। 0 मीन्स लेस ट्रांसपेरेंट, मोर मीन्स मोर विजिबल। ओके, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 20 करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो ये देखिए अब ये थोड़ा कम विजिबल हो गया, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। कम विजिबल, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पे 50 वैल्यू सेट करता हूँ तो ये और कम विजिबल होगा और ज़्यादा। तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स विजिबिलिटी इज when transparency increases visibility is down at that time। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर 100 करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो सी माई वीडियो विल गॉन। why? Because I set the transparency at a maximum value। The range of this transparency is from 0 to 100। okay, 0 means less transparent, less transparent, 0 means less transparent, and 100 means more transparent। So this block is used to set the transparency of your video ranging from 0 to 100 value. Very, 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 very important. This will definitely ask in exam. Most of the time this block will ask in exam. Okay, let me show you some more example related to this video sensing extension now. Okay, we will start one by one. Okay, so it is the example number one, example number 1 on page number 147, on page number 1, very simple example. So in order to run the script we have this block when video motion on. This block is used to run the script by giving some sensitivity value here. Okay, 10 means more sensitive. Okay, next I want to play the sound meow. Next I want to change the look of the sprite, of the style, look of the sprite, not look, change color of the sprite effect by. And next last one is go to random position, that is the in position block, go to random position. Okay, okay, some technical issue in the application, let me show you now. Okay, now see, this is my cat sprite, and when I click it will run the script. Okay, when it's it takes some motion, it will change the color and give the sound also like a meow, and also give go to the random position. See, it will, by using my body interaction it will move to the random position, also changes the color and play the meow sound here. Very simple step. So this block is used to turn on the script and also providing some sensitivity value. This block is used to play the sound, this block is used to change the color effect, and this block is used to go to the random position. See, when I interact with the cat,
my hand motion, it will move to the random position, also changes the color and also play the sound. Okay, see, this is the example number 2 from your textbook. Example number 2, and the page number is 147. Read that example from there. So, what I am doing here, okay, when I click on green flag click, it will run the script. After that, turn video block will turn on your webcam. Whatever you are seeing here, that is just because of my webcam. This block is used to set the transparency, that means the visibility of your video. Forward block is used to run the internal script for infinite time. Okay. If block is used to check the condition. If this whole condition is true, then and then only it will go inside the if block and run this script. This one. Run this script. That is the say hello for 2 seconds. Oh, okay. See, these three blocks are very simple. One is the start the scripts, another turn on the video, and next one is set the video transparency to the 50 degree. This is very important block. Okay. Now I put it all the code ब्लॉक कोड इनसाइड दिस फॉरएवर. इससे क्या होगा कि ये फॉरएवर टाइम तक ये स्क्रिप्ट चलेगा, इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट है. ओके. बाद में सिर्फ इफ ब्लॉक में डाला सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए. कंडीशन चेक करने के लिए मैंने, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे निकाल देता हूँ, देखिए ए ब्लॉक में मैंने पहले ऑपरेटर में जाके एक ब्लॉक चूज करा जिसका नाम है दिस वन. इट इज यूज टू चेक द condition by using this operator symbol, that is greater than symbol. Okay. अब यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू न डालते हुए जो भी मेरे बॉडी का मोशन हो रहा है, ये ब्लॉक उस मोशन के वैल्यू को डिटेक्ट करता है. तो ये अगर इसके अंदर मोशन के वैल्यू को सेव कर रहा है, डायरेक्टली मैं इसे ही यहाँ पे पुट कर देता हूँ. Okay. अब ये ब्लॉक क्या करेगा कि मोशन की वैल्यू को डिटेक्ट करेगा. ओके. तो आपके एग्जांपल में यहाँ पे 30 दिया है, तो मैं आप पे 30 करता. आपका मोशन अगर 30 के ऊपर है, तभी ये हेलो बोलेगा 2 सेकंड के लिए, नहीं तो नहीं बोलेगा. अगर आपका मोशन का वैल्यू 30 से ज्यादा है, तब भी ये हेलो बोलेगा, क्योंकि तभी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. क्योंकि ये देखिए कि ये जो डायमंड शेप में जो ब्लॉक होते हैं, ये सिर्फ कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं. ट्रू और फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तभी ये अंदर जाता है, नहीं तो नहीं जाता है. ओके. तो यहाँ पे कब कंडीशन ट्रू होगी, जब आपका बॉडी का मूवमेंट 30 वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी का मोशन 30 से ज़्यादा हो जाएगा, तभी ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन. ओके. तो मैं रन कर रहा हूँ अभी स्क्रिप्ट को. टीम अब कुछ भी हेलो नहीं बोल रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी मोशन की वैल्यू यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी, कि इसने हेलो बोल दिया. जैसे मेरी मोशन की वैल्यू 30 से ऊपर जा रही है, 30 पिक्सल को क्रॉस कर रही है, ये हेलो बोल रहा है 2 सेकंड के लिए. वेरी सिंपल स्क्रिप्ट. फिर से बताता हूँ. इससे स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी, इससे वेब कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, इससे ट्रांसपेरेंसी ऑफ वीडियो सेट हो जाएगी. ये वाला ब्लॉक जो है, ये वाला ब्लॉक हमें मोशन की वैल्यू देता है, और अगर मोशन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, तो ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये वो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है इफ के अंदर का, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके. तो आई एम रनिंग द स्क्रिप्ट अगेन. सी, सी, whenever my motion value is greater than 30 pixel, it will give you hello for 2 seconds.
Okay, simple. Okay, okay. This is now example number 3 on the page number 148. This is example 3, example 3 on page number 148. ओके, अभी इस एग्जांपल में क्या करना है? तो मुझे क्या करना है कि मुझे डायरेक्शन की वैल्यू इस बार रेफरेंस एज अ रेफरेंस लेना है, चेक करने के लिए कंडीशन। जब मेरी ये डायरेक्शन की वैल्यू 30 डिग्री, सॉरी 30 वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, तभी मेरा स्प्राइट मूव करेगा जितनी मेरी मोशन की वैल्यू है। डायरेक्शन भी मैं कंडीशन चेक करूंगा, और मोशन की वैल्यू का यूज मैं मूव करने के लिए यूज करूंगा। ये कंडीशन चेक करने के लिए डायरेक्शन की वैल्यू यूज होगी, और मोशन की वैल्यू स्प्राइट को मूव कराने के लिए। ठीक है, मेरा मोशन अगर 30 रहता है तो मेरा स्प्राइट मूव करेगा 30 स्टेप। ओके, तो मैं ये ब्लॉक यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये वाला ब्लॉक यहाँ पे डाल देता हूँ। ये मूव होने वाला है इतने वैल्यू से, जितनी आपकी मोशन की वैल्यू होगी उतना ही वो हो जाएगा। ओके, नाउ अब कंडीशन चेक करना है। कंडीशन चेक करना है तो ये ब्लॉक लगेगा डायमंड शेप वाला हमारा, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ऑपरेटर ब्लॉक्स। ओके, अब यहाँ पे चेक क्या करना है? डायरेक्शन की वैल्यू। अगर डायरेक्शन की वैल्यू 50 से ज़्यादा है, यहाँ पे 30 सेट कर देता हूँ मैं, 30 से ज़्यादा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट की मूवमेंट 30 से ज़्यादा हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है। अगर लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है, तो जितना मेरा मूवमेंट हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ओनली। ओके, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन, लेकिन मूवमेंट की वैल्यू अलग रहती है, डायरेक्शन की वैल्यू अलग रहती है। ओके, अगर मेरी डायरेक्शन की वैल्यू अगर 30 से ज़्यादा हो जाती है, तो जितनी मेरी मूवमेंट हुई है स्क्रैच पे, उतना वो स्क्रैच, स्प्राइट्स नॉट स्क्रैच, स्प्राइट मूव करेगा उतने वैल्यू से। ओके, so let me show you now, this is the script. I am running the script now. Now one by one I will show you. Okay, this block is used to this block is used to run the script. This block is used to turn on your webcam. This block is used to check the condition by using direction value. If the value of this block, this is the block up to this, if value of this block, that means your direction value is greater than 30, then and then only this condition become true. Because we are, if a is greater than b, like that. अब a की वैल्यू यानी कि मोशन की वैल्यू, b की वैल्यू यानी 30, दिस इज ओके। अगर a की वैल्यू अगर 30 से ज्यादा है, तभी ये आउटर ब्लॉक जो डायमंड शेप में है, ये हमें ट्रू दे देगा। ओके, अगर ये ट्रू देता है तो तभी ये अंदर आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन की वैल्यू नहीं, मोशन की वैल्यू कितनी हुई है, मोशन कितनी हुई है, जितनी मोशन वहां पे होगी उतना ही स्प्राइट मूव करेगा। ओके, तो आई विल रन फॉर यू नाउ, नेक्स्ट रन। सी, it is moving because my direction value of my head is from left to right. Now see, it is moving. See, it is moving by now। ये मूव हो रहा है आपकी जितना राइट पे मूवमेंट हो रहा है। वेरी सेंसिटिव, हाँ, वेरी वेरी सेंसिटिव। सी, सी, लेफ्ट टू राइट मेरा मूवमेंट हुआ है। अगर आपको डायरेक्शन और इसका डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, आपको ग्राफ पता होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस रहता है, यहाँ पे वाई एक्सिस रहता है। यहाँ से जीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है, 1 2 3, लाइक दिस। ओके, और स्प्राइट हमेशा सेंटर में यहाँ पे रहता है, स्टेज एरिया में। अब ये अप टू 240 वैल्यू होती है। अब इधर वैल्यू अगर देखना है, -1 -2
minus 3. This is the, I'm talking about direction, not motion. Okay, now value of this is also 4, minus 4. तो यहाँ से लेके ये -240 तक चल जाता है. ओके, नाउ द वैल्यू इज 1 हियर, not 1, -1, -2 here, -3 here, up to -240. अब y, this is value of y. ओके, अब ये भी यहाँ से 1 3 इस तरह से इंक्रीज होके अप टू 240 चला जाएगा. तो x की वैल्यू 0 से लेके यहाँ से लेके इस डायरेक्शन मीन्स लेफ्ट टू राइट, ये पॉजिटिव होती है. 1 2 3, दिस इज पॉजिटिव नंबर. अब ये राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में ये -1 to 240 होती है. इसलिए हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन मूव, अपने हैंड का मूवमेंट लेफ्ट टू राइट कर दे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने से हमें 0 से लेके 240 तक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. अब हमने स्क्रिप्ट में क्या डाला है कि डायरेक्शन की वैल्यू जो है, नाउ सी, अगर आपको ये अभी जो आपको मैंने एक्स और वाई बताया है, आपको अगर समझना है तो देखिए, दिस इज योर सेंटर ओरिजिन, एंड इफ आई ड्रॉ x and y axis, see this is my y axis and this is my x axis. तो जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू ऐसा डायरेक्शन चेंज, ये डायरेक्शन अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा मूव करूंगा, तो ये 0 से लेके 1 2 3 लाइक दैट 240 तक हम ले सकते. 0 इज हेयर सेंटर. अब ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते 240 तक जा सकते. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी डायरेक्शन की वैल्यू, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो लेट अस कंसीडर इट इज 50. ओके, अब 50 जो है ये 30 से बड़ी है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ये इसके नीचे आ जाएगा कंडीशन ट्रू होने के बाद. अब अब एक और बात होती है, दैट इज द हाउ टू कैलकुलेट द मोशन. नाउ मोशन की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? सी, मोशन की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि ये आपका कैट स्प्राइट है, और आपका जो इमेज होता है, जो भी वीडियो होता है, ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक दैट, इस तरह से. ओके, और ईच पार्ट को बोलते हैं पिक्सल. वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसे बोलते हैं पिक्सल. दिस इज 1 पिक्सल, दिस इज 2 पिक्सल. तो जितने पिक्सल मेरे हैंड मूवमेंट कवर कर रहा है उसे बोलते हैं मोशन की वैल्यू. ओके, जितने पिक्सल मेरे स्क्रैच पे के, अब स्प्राइट पे के, नॉट स्क्रैच, ये अगर मैं यहाँ से यहाँ कवर करता हूँ तो 1 2 3 4 5 ये सब 6 7, ऐसे अगर मैं 50 पिक्सल कवर कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मोशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50. और ये कैट जो है हमारा 50 स्टेप आगे चला जाएगा. गॉट इट? So I hope you understood everything. So this is the last example related to your video sensing extension. So this video's transparency block is very important as per the exam concern. Read properly, read all the description from your textbook. Okay, thank you.